In this video, I will be interviewing 3 couples जिनके मैं घर जाके उनकी लव स्टोरी जानने की कोशिश करूंगा. And you don't even remember what you did. Bits of it? चाय गिरा दी, भूरियाँ करा दी. तो जैसे मैं घर पहुंचे कि मुझे तुमसे बात करनी है. मैं कहा अल्लाह खैर करे, क्या बात करनी है. A few weeks ago, आयशा और मैंने एक वीडियो लगाई थी on Instagram जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी स्टोरी सुनाई थी. How we met. और आपको तो पता ही है हाउ वी मेट. शाबिर ने मेरे पीछे भाग भाग के मैंने से शादी कर लो प्लीज. मैंने कहा अच्छा ठीक है. Right. नहीं, that's not the true story. The true story is मैंने आयशा के पीछे गुंडे लगाए थे और फिर आयशा को उन गुंडों से आके मैंने बचाया था and that's when she got impressed. She was like, oh my god, you can save me, so I'm gonna marry you. Anyways, हमने Instagram पे पूरी अपनी स्टोरी लगाई थी. I'll link it below अगर आप लोगों ने नहीं देखी. और हम लोगों ने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग भी अपनी प्यार भरी दास्तान जो भी कपल्स हैं आप लोग हमें अपनी स्टोरी सुनाएं. एंड वी सेड कि जिन कपल्स की भी स्टोरी सबसे ज्यादा खूबसूरत होंगी उनको मिलेंगे ओप्पो के फोन्स. वी लिटरली गॉट thousands of submissions and out of all the stories we selected 3 and guess what, the phones are here that we are going to give away. These are actually pretty nice phones. So जो लोग हमारे साथ स्टोरीज शेयर करने को तैयार हैं, आयशा and I are just going to go now and meet them. Hello babies. हाँ जी. We left the house literally 5 minutes away from this location and He had one job. He left the phones at home जो हमने give away करने हैं. I mean seriously? One eternity later. we have the phones now. Let's go to the couples now. Yay! ये करना होता है ना. We were friends for pretty much since A levels up till now for the past year. It was really, I would say, a coincidence. She visited my office. I was working there where she used to work, and that's how basically it started. Wait, hold on. So you guys knew each other from like years ago. A level से आप लोग एक दूसरे को जानते थे और then you started working in the same office. We were friends the whole time we were in Hills, and we were always good friends. Like, ऐसा कोई scene नहीं था कि I was interested in him or you. Right. ऐसे नहीं हो जाती शादियाँ, guys. It was very unexpected because I did not expect it either, and I was the sort of person who's, you know, sometimes here, sometimes there, traveling around, you know. Like, I was not in a constant place ever, and he was always in Lahore, and he used to see me, you know. Person I like to stay. Right. Exactly. Okay. Fair. You're more like me. Yeah. I hate going out and Aisha complains so much. Aisha कहती है कि मैं जो हूँ He never goes. And it was just him. See, it's I barely go out. I'm like, I don't have a life after. Karla, मैं शीशे के सामने अपना कैमरा रख के गई थी. I don't have a life anymore. I need to get used to this. I need to get used to not doing anything. So basically, the way I told my father about her was I had an accident. I broke my face in 3 places. And I was in the hospital at that time. It was after my operation. मैंने seizure के effect में था and I had no idea what I was saying. And my father was just standing there and I went and I suddenly he just looked at me and I just looked at him and I started crying. I was like, do you really think that I'm not gonna marry her? And like I have no idea what I said, what I like out of the blue I just admitted it to him and he was like, I already know. And like 20 minutes later, I walk in and his dad is standing. Wait, hold on. You asked your parents about I marrying her while you're drugged up, and you don't even remember what you did. Like bits of it. ये तो नहीं हुआ कि शादी होके वो कि ये मैंने क्या कर लिया है, ये मैंने तो डिसाइड किया ही नहीं था. Out of all the people that I knew, he was the last person that I thought I would marry. Honestly, nobody in our whole social circuit ever expected when we told Dude, why do you just keep getting this treatment? He was the friend. Acha, he was the friend zoned guy. Not the in your list. Nobody. You didn't friend zone me. I never We asked her friend out or zoned each anything. other. No, that's not fair. Back in school, I was like, you know, he's a nice person. I wish whoever gets to marry him, you know, like, she might be so lucky. I did not be that lucky person. I still admit that. For your awesome love story and your amazing future, inshallah, I would like to give you guys this phone right here. That is so sweet. Oppo Reno 12. I wish Aisha was also here with us, but वो आज आ नहीं सकी. She was busy. Oh, hi. Hello. How are you? देखो उनकी वाइफ उनको कितना सपोर्ट करती हैं. मैं नहीं करती. मैंने कहा ये. क्यों आपको क्यों लगा कि ऐसा कुछ है? No, that's an inspiring story. Off Very inspiring. to the other couple now. Okay, so I'm sitting with Izza and
Furqan right over here, जिनकी love story हम बिल्कुल अभी जानने लगे. This all begins in in 2020. COVID भी छा रहा था. I saw her the first time at my brother's engagement. अच्छा, engagement पे the moment I saw her, I was like यार ये बंदी, वो कवाली ना, आग उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, बस पूरा वो सीन था. तो मैंने देखा यार सी लुक्स नाइस, मैंने भाभी को अप्रोच किया एंड साथ ही शट डाउन, कोटिंग व्हाट फैमिली डिफरेंसेस, वो मुख्तलिफ किस्म के राइट्स एंड रॉन्ग, फाइनेंशियल, XYZ. आई मेंटली चेक्ड आउट एंड आई वाज लाइक मोहब्बत अंगड़ाई लेके सो गई. खैर फास्ट फॉरवर्ड कपल ऑफ मंथ्स, हर शादी का जो बेस्ट पीरियड होता है डांस प्रैक्टिसेस. मैंने भाई को आइडिया दिया यार एक ना ब्राइड साइड ग्रूम साइड मिला के करते, भाभी को बहुत अच्छा लगेगा कि सारा अजीब हो गया. मैंने कहा यार वो ना एक इज़ा है, उनके साथ मेरा करा दो, उनको कुछ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता डांस, मैं सिखा दूंगा. गाना भी मेरी मर्जी का, दिल चोरी साड़ा हो गया कि करिए. अब बस वो एक बहाना चाहिए था मुझे. 1 month बिफोर द एक्चुअल वेडिंग आइस ब्रेक की, गॉट टू नो ईच अदर बेटर. डांस मैंने अच्छी तरीके से सिखा दिया था, हुआ नहीं हुआ अलग बात है सही तरीके से. द मोर आई गॉट टू नो हर बेटर, जितनी कम्युनिकेशन की, लाइक शी केप्ट चेकिंग ऑल द बॉक्सेस, काइंडनेस, जेनरोसिटी, एम्पैथी एंड बेस्ट थिंग की मेरी अंडरस्टैंडिंग. तो अब मैं हुआ बड़ा बहादुर. मैंने कहा 3 महीने हो गए, शादी हो गई, अच्छा जी घर बात कर लेते हैं. अब वेडिंग फीवर गुजर गया है. बस वहीं से जो मसले शुरू हुए, बस समझे कि मेरे पास ना अपना बिजनेस बचा, मैं तो घर छोड़ के जाने लगा था. मतलब इतनी हालत हो गई थी. इतने मेरे पेरेंट्स ने मना किया था सख्त तरीके से. उन्होंने कहा इट्स ईदर द बिजनेस or either this decision. I felt that the reason I was unable to actually मैं अपना रिश्ता भिजवा पाता, शादी कर पाता, is because मैं financially independent नहीं था. Just because families को नहीं समझ आ रही, I felt कि यार this was unfair on both of us. खैर फिर मैंने काफ़ी दफ़ा कहा, मैंने कहा यार अब मसला हो गया, नहीं होता, मैं ना जाता हूँ यहाँ से. मैंने अपना पासपोर्ट पकड़ा, मैंने कहा मैं कनाडा जा रहा हूँ जॉब एम्प्लॉयमेंट ढूंढने. खैर जब वो बात आई कि फैमिली ने कहा कि यार ये तो वाकई जा रहा है छोड़ के, नहीं इस तरह तो कभी भी नहीं हो सकता, रुक जाओ. मैंने कहा ठीक है, आई स्टे इन पाकिस्तान, एक शर्त पे. मैं कहा मैं अपना बिजनेस को शुरू करना चाहता हूँ. वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फेजेस ऑफ माई लाइफ, आई थिंक उससे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ. एंड शी प्रूव्ड टू बी माई रॉक, माई कॉन्फिडेंस. मैंने इतनी दफ़ा कहा. And at the time you guys were seeing each other basically. Yeah, we were speaking to each other. we were like हमने शादी करनी है, हमने करनी थी. सही है. एंड फिर मैंने कहा कि यार इज़ा आपके बहुत रिश्ते आ रहे हैं, अंकल भी क्या कहेंगे, आप करें रिश्ते. लेकिन नहीं, चाय गिरा दी, भूरियां करा दी. No way. Actually. Towards like end 2023, I finally came to a point, alhamdulillah, after like thousands of prayers, तहज्जुदों में बड़ी दुआएं रो के कि बस ये किसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. उसके बाद कोई जाके आई फेल्ट यार अब मैं थोड़ा सा ना पैसे 2 पैसे इकट्ठे हो गए, मेरा बिजनेस भी अब सही तरह सेट हो गया, तो मे बी अब मैं दोबारा करता हूँ. बस जी फिर कोई फेक मिस कॉलिंग करवाई कि जी अच्छा जी अंकल के फ़ोन से इन्होंने कॉल की. तो अब तो खैर सब कुछ पता लग गया है. हाँ. कि जी अम्मी को तभी देखिए उनकी कॉल आई है, आई थिंक वो करना चाह रहे हैं. अम्मी के फ़ोन से मैंने कॉल करवाई, मैं कहा देखो कॉल आ रही है, मीन्स करना चाहते हैं. कर के फिर जी मुलाकात हुई अब इसी नीयत के साथ कि हमने करना है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 साल की खजल ख्वारियों के बाद, लाइक एंड 23 का टाइम था जिसके अंदर हमने फाइनली इसको कन्फर्म किया. एंड इसी साल 2024 में फिर हमारी फाइनली आफ्टर ऑल ऑफ दैट रोलर कोस्टर राइड शादी हो गई. मेरा यूनिवर्सिटी का लास्ट सेमेस्टर था, तो जैसे मैं घर पहुँच गया, मुझे तुमसे बात करनी है. मैं कहा अल्लाह खैर करे, क्या बात करनी है. तो ऐसे ना एक ये रिश्ता समझ में आ रहा है. मैं किसके बारे में, मुझे लगा शायद बड़े भाई के बारे में या कज़न के बारे में या किसी और के बारे में, मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में बात हो रही है. मैं कहती मेरी बहन की बेटी है, उनसे मेरी बात हुई. मुझे पहले समझ नहीं आई कि मैं कहूँ क्या. अगर ठीक है आप देख लें, मुझे लगा कि शायद 1-2 साल अभी मंगनी होगी, फिर जो सा कहते निकाह होगा, फिर शादी होगी और सारी चीज़ें जाएंगी ना. तो अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी गया हूँ, वापस आया तो कहते जी मैंने डेट रख दी. मैं किस चीज़ की डेट रख दी आप? जी आपकी शादी की डेट रख. और डेट क्या है? 17, 18, 19, यानी कि 10 दिन बाद आपकी शादी. So you come home from your university and you found out that in 10 days you're getting married. अच्छा इस पे एक और क्लच है तो मेरी सगी खाला की बेटी, लेकिन मैंने उनको नहीं देखा था बचपन के अलावा, तो मुझे नहीं था पता कि वो ग्रोन अप कैसी हैं. So once again just अगर हाईलाइट बताऊँ आपकी शादी की, आप यूनिवर्सिटी से घर आते हैं. हाँ जी. आपकी 10 दिन बाद शादी है और आपको ये भी नहीं पता लड़की दिखती कैसे दिखी है. Were you scared? Kind of. And now when you look back, do you think it was a good decision? It was a good decision. Maybe it was the only decision I took in my life. The only decision your mom took in Yeah, in your life. Yes. अब 10 दिन है,
पैसे जोड़ने शुरू किए, जहाँ जहाँ से थी गाड़ी थी, आई सोल्ड माई कार करके शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं बेसिकली मैं तो बिल्कुल ज़ीरो था ना उस टाइप पे, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी वाइफ की ना दाद दूँगा। उन्होंने मुझे कभी भी फील नहीं कराया कि मैं जो से उस टाइम पे कि मैं कमा नहीं रहा, उन्हें हनीमून पे नहीं लेके गया कहीं पे, कोई मैंने उस तरह से एक्सपेंसिव चीज़ नहीं दी। फिर आफ्टर 2 वीक्स मैंने जो से कहते हैं स्टेप लिया, मैं नहीं अब तो कुछ करना, ठीक है। तो आई वेंट टू कराची, आई हैड 600 रुपीज़ इन माई पॉकेट। मैं कोई बात नहीं, आप जाएँ, अल्लाह माफ़ रहेगा, आप रिस्क लिए जा रहे हैं, अब जाएँ। कोई शबीर भाई 3 हफ्ते बाद मेरे अकाउंट में 6 और 8 लाख रुपए थे। अच्छा, ठीक है, और उस 6-8 लाख रुपए से ना मैंने कोई तकरीबन अगले साल 1.5 साल में 1.5 करोड़ का बनाया। गया यहाँ से मैं ट्रेन पे था, इकोनॉमी क्लास पे, वापस मैं प्लेन पे आया और यहाँ पे आके मैंने अपनी वाइफ को कार गिफ्ट की। फिर उसमें मैंने जो उनसे कहते हैं जो चीज़ें मैं नहीं कर सका था वो मैंने सारी उनको दी। such an inspiring story. Thank you so much for sharing your story with us.